12 روپے کا یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ کون سے 110 رسالے یہ تقسیم فرمائیں گے 12 روپے والے. اچھا، اللہ قبول فرما. اس میں یہ مدرس ڈے یا فادرس ڈے سے مراد کیا انتقال کے بعد جو برسی منائی جاتی وہ ہے؟ یہ اصطلاح میں نے پہلی بار سنی. یہ ایک معاشرے میں ہمارے یہاں ہے، واٹر ڈے مناتے ہیں، پانی کا دن. یعنی اس میں یہ ایک مطلب یہ شاید ہمارے کلچر سے نہیں چلا. جو میری اطلاعات ہیں یہ ہے کہ جیسے کہ اس دن خاص ماں، مطلب وہ مدر ڈے کہ آج ماں کے لیے کچھ مطلب خاص، تو ماں کو تحفہ دیتے ہیں، ماں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ماں کا اس دن ماں یاد آتی ہے. اور چاہے کبھی زندہ ہو یا نہ ہو. مطلب یہ زیادہ تر زندوں کے لیے یہ ترکیب ہوتی ہے. اور پھر کبھی فادر ڈے ہوتا ہے تو اس دن باپ کی یاد آتی ہے. اگر باپ اور ماں اولڈ ہاؤس میں تو مدر ڈے تو کم از کم ماں کے پاس چلے جائیں گے، یا فادر ڈے میں کم از کم ایک دن تو باپ کے پاس چلے جائیں گے. جبکہ ہمارا اسلام تو روز مدر ڈے منانا، روز فادر ڈے بناؤ. ہمارا اسلام تو ہمارا اسلام ہے. ایک بار ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھو تو مدینہ مدینہ ہے. تو یوں مطلب کہ یہ ایک ہے وہ وجہ سے نا، مطلب کہ ویلنٹائن ڈے، تو وہ جو عشق وش کرنے والے وہ جو ایک دوسرے کو جو تحفہ طائف دیتے ہیں، یہ مختلف سال بھر میں ڈے منائے جاتے ہیں. چلڈرن ڈے یہ تو سن رکھا ہے. تو یہ سال بھر میں کچھ ڈے منائے جاتے ہیں. تو یہ ان ڈے منانے میں ایک ڈے یہ آ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ ہسبینڈ ڈے کب بنتا ہے نہ وائف ڈے کب بنے گا، کیونکہ یہ شاید پھر سال میں ایک دفعہ وہ شوہر کا ادب کرنے کے لیے جائے گی، اور وہ سال میں ایک دفعہ شاید بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے پہنچے گا. تو یہ ایک چلا ہے. اب اس پہ پلس ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ دنیا میں ایک چیز چلی ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بہتری بھی ہو نہ بھی ہو، اتنی زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. بازار بہتری تو نظر آ رہی ہے، لیکن اب یہ کہ اس میں کیا یہ دیکھو فرماتے ہیں میرے لیے نئی چیز ہے. باپا وہ تحائف بھی دیتے ہیں ماں باپ کو، اور ریسٹورنٹ پہ لے گئے، اس دن کوئی اچھا کھانا کھلایا اور گھما دیا، کچھ اس طرح کی سیر و چیزیں تفریح کر کے کرواتے ہیں. سیر و تفریح کروا دی. مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کہ یہ جو ویسٹرن کلچر میں، مغربی کلچر میں جو ماں باپ کے ساتھ جو ایک بے توجہی کا جو رجحان بڑھا اولاد کے حوالے سے، اور اولاد نے جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا دن رکھ دیا ہو کہ مطلب چلو آج مدر ڈے مناؤ، کہ آج ماں کے لیے کوئی ترکیب ہو کہ ماں کے لیے کوئی یہ کریں، یا باپ کے لیے ایسا کچھ کریں. یہ مجھے ایسا مطلب کہ خیال ہے، واللہ عالم میں غلط ہو سکتا ہوں. سارا سال تو ستاتے ہیں، ایک دن چلو اس کو راحت پہنچا دیں. غیر کرائم تو مسلموں یہی نے ہے، جیسے حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ سال بھر ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ الگ اور یہ الگ. اور جیسے ہی نوجوان نسل وہ بلکہ شادیوں سے پہلے ہی وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، جیسے ملے وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ اکیلے ہی رہتے ہیں، یا پھر اولڈ ایج جب وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے تو پھر اولڈ ایج ہوم میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کا لائف سٹائل ہے. تو پھر سال میں ایک مرتبہ ان سے مل لیا، ان کو کھانا کھلا دیا، کوئی تحفہ دے دیا، کپڑا دے آئے. تحفہ بھی گلدستہ دیتے ہیں جو بیچاروں کو کام نہیں آتا. گلدستہ بہت رائج ہے. پھول دیتے. اب پھولوں کا ہو، کام نہیں آتا، اسے یہ رکھا رہتا ہے، مرجھا جاتا ہے. آپ کچھ فرمائیں گے؟ میں نے تو پہلی بار یہ سنا. بس یہی اصل میں جو حاجی صاحب فرما رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ اصل میں یہ جس طرح فرما رہے ہیں بہتری والی، تو دوسری طرف وہی صورتحال ہے کہ بس ایک دن کر کے فارغ ہو گئے. تو اس سے یہ دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے کہ اگر یہ رائج ہو تو پھر جو توجہ ہے وہ مکمل طور پہ ہٹتی چلے جائے گی. جن کی ہے بھی وہ بھی کر کے یہ فارغ ہو گئے، تو ایسا بھی صورتحال بن سکتی ہے. یہ تو ہے کہ یعنی کہ ہر وقت ماں باپ کے حقوق تو ہے، اس کے تو سبکدوش ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے باوجود اگر کوئی مدر ڈے کے طور پر زیادہ اپنے ماں کی خدمت کرتا ہے تو وہ ایک الگ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کچھ یعنی کہ ایک نئی چیز ہے، جدت ہے یہ، اور غیر مسلموں نے اس کو رواج دیا ہے. تو ہم غیر مسلموں کی نقالی سے بچنا ہی چاہیے. اور ہر وقت ماں باپ کی روز مدر ڈے ہو، روز فادر ڈے ہو، روز سسٹر ڈے ہو، روز بردر ڈے ہو، اور ڈیلی چلڈرن ڈے بھی ہو. سب کے حقوق روز ہی ہوتے ہیں، اینی ٹائم مطلب ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला सल्लल्लाहु मुहम्मद। ताला बहुत अला खूबसूरत बाबा ये आपने अभी आखिर में जुमला इरशाद फरमाया कि सिले रहमी वाला। असल में ये जो मगरबी कल्चर है ना, वेस्टर्न कल्चर, जिसे अमूमन तौर पर अगर मैं आम जबान में बोलूँ तो अंग्रेज़ों का कल्चर होता है, नॉन मुस्लिम से होते हैं। इन्होंने बाबा आज़ादी, इंडिपेंडेंस और मतलब कि एक दूसरे के मामले में मुदाखलत ना करना, गौर ना करना, ये इतना वहाँ परवान चढ़ा कि जो रिलेशनशिप है ना, रिश्तेदारी, ताल्लुकात, ये मिलना जुलना, ख़ानदान जिसको कहते हैं ख़ानदान, वो वहाँ मतलब कि मुंतशिर है। वहाँ ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो चुका। अब ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो गया, माँ बाप का एक अपना निज़ाम बन गया, औलाद का अपना निज़ाम बन गया, भाई बहनों का अपना निज़ाम बन गया। तो वो मतलब कि उन्होंने किसी भी सोच के तहत ये निज़ाम मतलब अगर उठाया हो, लेकिन आज गुमान ये होता है, मज़ामीन ये बताते हैं कि आज वो खुद इस निज़ाम से तंग आ गए, क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े हो गए, क्योंकि ये सब जवान थे तो शायद उन्होंने ये निज़ाम बना दिया होगा उस वक्त चंद बरसों पहले, लेकिन जब ये बूढ़े हुए होंगे तो आज इनको पता चला कि यार ये खानदान तो हमारा मुंतशिर हो गया, हमारे औलाद हमारे पास नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं है, पड़ोसी के बारे में ना मालूम कर सके। और ये हमारे यहाँ भी है, लोग इस जगह पर रहना पसंद करते हैं या किसी को किसी के बारे में पता है, यार हम तो भाई अपनी हमें नहीं पता पड़ोस में क्या हो रहा होता है। अब पड़ोसी के वो हुक्म, पड़ोसी के वो अहकाम, पड़ोसी के वो आदाब, मामला जो इस्लाम हमारा बयान करता है, तो ये सारा जो है ना बाबा एक माशरती निज़ाम जो इस्लाम ने दिया, ताल्लुकात का, रिश्तेदारी का, सिले रहमी का, जैसा फरमा रहे हैं, ये मतलब कि ये वहाँ चला है, इसके एंटी चला। वही चीज़ अगर हमारे यहाँ हमारा मुसलमान लेके बैठेगा तो आखिरकार उसको भी इसी तरह सदमात का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि जो इस्लाम का जो ख़ानदान का, ताल्लुकात का, सिले रहमी का, माँ बाप के मामले में, मियाँ बीवी के मामले में, भाई बहनों के मामले में जो हुकूक बयान किए गए, खाला है, मतलब फूफी है, इस तरह के जो रिश्तेदार हैं, इन हवाले से इसी को लेकर चले तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा सुकून और आफियत से रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी आलमगीर सतह पर जिस तरह दावत व तबलीग व इस्लाह माशरा का काम कर रही है, तो जितना मुझे इसके बारे में मालूमात है और मैंने समझा और देखा है, तो सही इस्लामी रूह के मुताबिक लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया जा रहा है। हालांकि कोशिश ये की जाती रही कि इस्लाम का वो चेहरा पेश किया जाए दुनिया में कि जो किसी को भी पसंद नहीं है, और वो इस्लाम का चेहरा कतई नहीं। दावत इस्लामी जिस तरह काम कर रही है, वो इस्लाम का सही चेहरा पेश करने में, इस्लाम को अमन का मज़हब बनाने में, इस्लाम की तरफ गैर मुस्लिमों की तवज्जो हासिल करने में, और सबसे बढ़कर इस्लाम की नशर व इरशाद का काम अल्लामा मोहम्मद इलियास कादिर साहब की तहरीरों और तकारीर के ज़रिए जिस तरह फैल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी, वो लायक सताइश है। इसका अजर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ज़्यादा होगा। मैं चौधरी मोहम्मद इशफाक टोबाटेक सिंह से दावत इस्लामी का मदनी चैनल पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दे रहा है और मुसलमानान इस्लाम की बेहतरीन खिदमत कर रहा है, और इस्लाम के सिलसिले में जो भी रहनुमाई मुसलमानों को दरकार है इस्लामी चैनल फराहम कर रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लामा मोहम्मद इलियास कादरी साहब की रहनुमाई में ये चैनल दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और मुसलमानों की रहनुमाई फरमाता रहे। बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इलियास कादरी की खिदमत में सवाल है कि क्या पूरे रमज़ान का इत्काफ़ सुन्नत है? इससे कबल हमने 10 दिन का इत्काफ़ सुना है, शरई रहनुमाई फरमाई जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूरे रमज़ान का एहतिकाफ भी साबित है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान शरीफ का भी एहतिकाफ किया है, 20 दिन का भी एहतिकाफ किया है, और 10 दिन का एहतिकाफ तो है ही सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफ़ाया, कि कुछ लोग कर लेंगे बस्ती में तो सबकी तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी, और एक भी नहीं करेगा तो
सब सुन्नत के तर्क करने वाले करार दिए जाएंगे. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला तआला आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से सवाल. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. प्यारे बाबा जान मोहम्मद नादिर अत्तार इलैया से. प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में अर्ज़ यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुद को आज़ी के तौर पर फ़कीर कहा करते थे. क्या हम ख़ुद को फ़कीर कह सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दें. और दुआए मग़फ़िरत की इल्तिजा है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उलमा किराम में ये राइज है कि आजिज़ी के तौर पर अपने आप को फ़कीर कहते हैं. अवाम में इतना राइज नहीं है कि अपने आप को आजिज़ी के तौर पर फ़कीर कहना. लेकिन अगर कहता है और वाकई दिल से वो कह रहा आजिज़ी कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल. इस वक्त मैं मदनी मुज़ाकरा देख रहा था और निगरानी शुरा की गुफ्तगू सुन रहा था कि जो गरीब मतलब है बंदों की औलाद होती है वो उनकी जुतियां उठा के पीछे चलती है और दूसरे लोग ऐसे लोग रश करते हैं कि देखें ये औलाद कैसी है. तो मुझे एक मरतबा एक शहर के अंदर जाना हुआ तो मैंने देखा बाकायदा तौर पे कि दो नौजवान लड़कियां थी और उनका बिल्कुल बूढ़ा बाप था. उसको वो मारती हुई एक घर से निकली है. बिल्कुल जो है वो मेन रोड पे जो मेन था वो जगह, मैं वहां से गुजर रहा था, मतलब है मेन बाजार से, तो उसमें ले आई. तो पूछने पर पता ये चला कि इसका घर ऊपर है और ये कहीं किसी बैरून मुल्क होते हैं. और सिर्फ उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को मना किया है कि ये मोबाइल पे आप किससे रब्ता कर रही हैं, क्यों कर रही हैं. तो उन्होंने मतलब है वो मुख्तलिफ कपड़े जीन के और इस तरह की पैंटें पहनी हुई थी और उन्होंने कहा इसने मना किया तो किया क्यों है, ये कौन होता है मना करने वाला. और ये जो निगरानी शुरा जिस तरह और मदनी मुज़ाकरे में बापा फरमा रहे थे और निगरानी शुरा फरमा रहे थे कि ये अंदाज भी होता है और ये बिल्कुल मैंने सर की आंखों से देखा है एक शहर के अंदर. और एक बहुत बड़ी इबरत है. वाकई हमें मदनी चैनल देखते रहना चाहिए और ये बापा के मदनी मुज़ाकरे आमिर सुन्नत के सुनने चाहिए ताकि हमारी इस्लाह हो और हम भी इस्लाह करने में कामयाब हो जाएं. अल्लाह ताला मदनी चैनल को सलामत रखे, हमारे आमिर सुन्नत को सलामत रखे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तो ये कल जो हमारा मौजू चला था ना पापा, ये उस पर कॉल आई थी. ये हाल हो गया माशरे का. देखे हैं ये दिन अपने ही हाथों की बदौलत. शिकवा है जमाने का ना किस्मत का गिला है. इतने गुनाह बढ़ गए. क्या फरमा. देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत. शिकवा है जमाने का ना किस्मत का गिला है. सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है. देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत. सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि जिस घर के अंदर
कबूतर होते हैं, अमूमन ये सुना गया है कि वो जगह को वीरान कर देते हैं, ये किस हद तक सही है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कबूतर तो खुशनसीब जानवर है, परिंदा है कि इन्होंने हिजरत के मौके पर सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने यार गार के साथ गार में तशरीफ फरमा थे। कबूतरी ने अंडे दिए थे। ये फिर इनकी नस्लों को रिवायतें इस तरह की कि काबे शरीफ में क़याम की इजाज़त मिली तो कबूतर ही कबूतर है, तो मक्का मुकर्रमा तो आबादी आबाद है, मस्जिदुल हराम आबादी आबाद है ना। जूक दर जूक दुनिया से लोग जा रहे हैं और सवाल करने वाले का भी जी चाहता होगा कि मैं भी काश मक्का मदीना देखूं। पूरा चौक है जिसका नाम ही बता रहे, कबूतर चौक लोगों ने रख दिया होगा, दाने वगैरह डालते हैं, तो वहाँ तो लाखों लाख कबूतर है, समझे। तो कबूतर अगर वीरानी का बाइस होते तो मक्का मदीना तो आबाद है, मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम आबाद है, तो गुंबद खजरा के भी बोसे लेते रहते हैं कबूतर। तो गिरदे काबा तवाफ भी घूमते भी हैं, तो यानी कि बताया जाता है कि ऊपर से नहीं उड़ते बल्कि ये यूं फिर के निकलते हैं। इनके तो मजे लगे हुए हैं, यानी कि दुनिया में कहीं भी कबूतर इतना महफूज नहीं होगा जितना वहां महफूज है, और जितनी खिदमत की जा रही है। लाखों रुपए के लोग दाने इनको खिलाते रहते हैं। अगरचे वहां की सुना है कि वहां के खुद्दाम को ये है कि इन कबूतरों का ये बहरहाल बोलने की हिम्मत नहीं है। बिल्ली के लिए भी कुछ है, ये रकमें हैं, बिल्ली को पकड़ के यूं करो तो इतनी रकम। तो ये भी सुना कि जो आशिकान रसूल होते हैं हम ये काम नहीं करते। मदीने की बिल्ली को हम कैसे मतलब जाकर मादल्ला दुख दें, तकलीफ दें। तो यानी बहरहाल लेके मदीने शरीफ में कबूतर की नस्लें दर नस्लें आ रही हैं। काबे शरीफ में तो ख़ास इनको पनाह मिली है अल्लाह की रहमत से। इनकी नस्लें कोई ख़त्म कर नहीं पाया अब तक, और इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी भी नहीं। हम भी मदीने के कबूतर देखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कब बाबा कोई कब? वीरानी का बाइस कबूतर नहीं होते, घरों में कबूतर आते हैं, मतलब कोई हर्ज नहीं है। इनकी बीट भी नापाक नहीं होती है। जो हलाल परिंदा उड़ता है उसकी बीट, जो हलाल परिंदा उड़ता है उसकी बीट ऊंचा उड़ता है। मुर्गी उड़ती नहीं है, मुर्गी को कोई उड़ने वाला परिंदा नहीं बोलेगा। तो जो इन्हें चलो ऊंचा उड़ता है, जो कबूतर है, ये अपने कबूतर, चिड़िया वगैरह, जो ये परिंदे जो हलाल है, तो इनकी बीट पाक है। मुर्गी की बीट नापाक है, नजासत गलीजा है। मुर्गी उड़ नहीं सकती, खाली जंप मारती है और यूं पर फड़फड़ा कर थोड़ा दरख्त से कूद जाती है। ये उड़ना नहीं कहलाएगा। फजाओं में उड़ते हैं ना परिंदे, उनकी बात है। बत्तख उड़ नहीं सकती फजाओं में, तो इसका भी बीच नापाक है, हालांकि परिंदा ही। पापा वो आला हज़रत का भी वाक़या है ना मदीने शरीफ में, कबूतर वाला, दाने वाला नहीं वो जो बैठे हुए थे और उलमा से गुफ्तगू चल रही थी, कमरे में किसी जगह पर थे, तो कबूतरों का घोंसला बना हुआ था, तो आला हज़रत के ऊपर कुछ नहीं डाल रहे थे कबूतर, ना तिनके वगैरह कुछ भी नहीं जी। तो आला हज़रत के ऊपर कुछ भी तिनके वगैरह गिर नहीं रहे थे, कबूतर डाल नहीं रहे थे। तो उलमा ने कहा कि हम यहाँ बैठते हैं तो ये हमारे ऊपर चीज़ें गिरा देते हैं, तिनके और ये चीज़ें, और आपके साथ ये कुछ नहीं कर रहे। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस तरह अल्फाज थे कि सालहनाहुम सालहूना, कि हमने इनसे सुलह कर ली, इन्होंने हमसे सुलह की हुई है, हमारे पर कुछ नहीं डालते। बामुक़द्दर है मदीने के कबूतर बेशक, बामुक़द्दर है मदीने के कबूतर
گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی فیضان مدینہ سے سوال۔ چلو سوال انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا عبد الرحمن عطاری اٹلی سے 30 روزہ ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ باپا سب سے پہلے تو عرض ہے کہ اٹلی سے بہت سے دیوانے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے اور دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ علیکہ وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم۔ باپا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہو اور جس سے قرض کی رقم واپس لینی ہے وہ حرام طریقے سے کماتا ہے، تو وہ اپنی جو رقم واپس لے گا وہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟ جواب عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ اس میں یہ کہ یقینی صورت اس میں ہونا بہت مشکل ہے کہ وہ یعنی کہ عام طور پر لوگ ہر چیز کو حرام کمانا کہہ بھی دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعی وہ حرام ہے جس پر قبضہ بھی نہیں ہوتا، نہیں قطعی حرام۔ تو جو کاروبار کرتے ہیں نا تو اس میں بعضوں کا تو حرام کرتے ہیں لیکن کچھ حلال بھی ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پوری رقم 100% یہ اوسی حرام نہیں ہوتی، جیسے وہ کسی کی ڈکیتی میں چھین لی یا چورا لی اس طرح کی یا رشوت میں لے لی، اس طرح کا حرام نہیں ہوتا وہ۔ اگر خدا نہ خدا کسی کا اس طرح کے حرام کا بھی معاملہ ہے تب بھی جو وہ قرضے میں دے رہا ہے تو یقینی طور پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہی رقم دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رقم وہ ہو جو اس کو ورثے میں ملی یا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حلال ذریعہ بھی ہو جس سے اس نے کمائی ہو سکتا ہے اس کو تحفے میں ملی ہو۔ تو اس لیے جب تک یقینی معلومات نہیں ہے کہ یہ رقم جو دے رہا ہے یہ کون سی ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی۔ پاپا یہ سوال میں جب وہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ تو وہ آپ کہتے ہیں ایاکم و ایاکم، یہ 2-3 اسلامی بھی نے پوچھا یہ باپا کیا کہتے ہیں؟ یہ عربوں میں پتہ چلا کہ یہ اس طرح کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، کوئی ان کو جزاک اللہ کہتا ہے تو وَإِيَّاكُمْ، اور آپ کو بھی یعنی کہ آپ کے لیے بھی جزائے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ یہ انگلش سٹائل سے جو ہے لگتا ہے عربی میں اب آ گیا ہے۔ انگلش والے یہ کہتے ہیں سیم فار یو، جیسے کسی نے کہا نا تھینک یو، سیم فار یو، یا سیم فار یو۔ اللہ بہتر جانے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عربوں سے انگریزوں نے لیا ہو، انگلش والوں نے، دونوں ہی صورتیں۔ میں نے بھی ابھی حال ہی مجھے پتا چلا یہ وَإِيَّاكُمْ پرانا ہے، یعنی کافی عرصے سے دیکھا ہوا ہے، اب یہ واللہ عالم کتنا پرانا ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ ہے، بات چیت ہوتی ہے نا کبھی کسی سے تو وہ یہی جزاک اللہ بولیں گے، لکھ کے بولیں گے وَإِيَّاكُمْ۔ تو انگریزوں کی نقالی کرتے ہو تو اتنا زبان پر چڑھ جائے۔ عربوں نے اپنا کلچر، ان کا لباس دیکھو، ان کا وہی تو ڈوری باندھتے کندورا اور اس طرح اپنا کلچر مکمل انگریزوں کے تابع رہی ہے۔ زبان کے حوالے سے تو ویسے ہی بہت حساس ہے۔ زبان کے حوالے سے تو ان کی مطلب عرب بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمارے اردو گھرانوں میں اب انگلش،
मम्मी को, अब अम्मी को मम्मी, मम्मी पहले क्या था मम्मा, पप्पा, अंकल, पहले हम लोग चचा सुनते थे, आम आदमी को चचा, अब अंकल बोलते हैं। आम औरतों को पहले बोलते थे, जिसको नहीं जानते, खाला, या मेमनी में हम लोग मासी बोलते थे, अब आंटी बोलते हैं, आंटी। तो ये कि अंग्रेजी कल्चर तेजी से पाकिस्तानी मुसलमान जो अपना रहे, इसकी तशवीश है। लेकिन वो इतना मतलब अब भी इनकी अरबी और लिबास और इसमें ये बाकी हैं लोग। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनके डॉक्टर देखें कि ये डॉक्टर भी इंग्लिश बराबर नहीं बोल सकते, टूटी फूटी बोलते हैं। इनके यहाँ ये तालीम भी इनकी ये डॉक्टरी की अरबी में होती होगी ना, हमारे यहाँ अंग्रेजी के बगैर गुजारा ही नहीं है। बल्कि डॉक्टर वही कामयाब है जो जाहिल के सामने भी ट्विन 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 करे तो यार ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब ये कच्चे भी काटता हो, भांगरे बांटता हो, तब भी मरीज तो ये समझे यार बहुत बड़ा डॉक्टर, इंग्लिश के ऐसे या अल्फाज बोलता है। ये हमारे यहाँ ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर हो, मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सवजल तहज्जुद की नमाज बाजमाअत 3:50 पर होगी। इंशाअल्लाह सवजल तहज्जुद की नमाज बाजमाअत 3:50 पर होगी। वो इस्लामी भाई जो माह कुफले मदीना तहरीक में शामिल हैं, और वो इस्लामी भाई जो आधी रोटी और पौनी रोटी सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं, वो इस्लामी भाई मकतब मदनी इनामात में तशरीफ़ ले आएँ। माए कुफले मदीना वाले इस्लामी भाई और पेट का कुफले मदीना लगाने वाले इस्लामी भाई मकतब मदनी इनामात में तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। करके क़ियाम मोमिन कुरान भी सुनेंगे, करके क़ियाम मोमिन कुरान भी सुनेंगे। अल्लाह से राबता है रमज़ान आ गया है, अल्लाह से राबता है रमज़ान आ गया है। रमज़ान रमज़ान